इदानीं वर्णकान्तरम् इति अधिकरण किं मया किमुक्तम् अधिकरणद्वयेन प्रतिपादनीयं विषयम् एकमेव सूत्रं यदि प्रतिपादयति तदा वर्णकान्तरम् इत्युच्यते एवम् इत्युक्तं सूत्रस्य तथा सम्भवति इत्युक्तं सूचनात् सूत्रमाहुः तर्हि द्वितीयं वर्णकं कथम् इति विचार्यते पठतु अत्र अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यदुर्वेदो निश्वसितमेतद् यदुर्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः इत्यादि श्रूयते विषयः अस्य इदानीं द्वितीयस्य वर्णकस्य विषयः इदं विषयवाक्यम् अस्य महतो भूतस्य इत्यनेन परमात्मा उच्यते परमात्मनः निश्वसितम् एतत् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः इत्यादि वर्तते तर्हि परमात्मा निश्वसितवत् वेदस्य सृष्टिं कृतवान् इति अस्य अर्थः ग्राह्यो भवति निश्वसितम् इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते निश्वसितमिव अनेन किं सूच्यते अनायासेन इति अनायासेन वेदम् अकरोत् ईश्वरः महता श्रमेण कृतवान् इति न समग्रं वेदम् अनायासेन कृतवान् इति सूचनाय निश्वसितम् इति उच्यते அந்த சுவாசம் போகிற மாதிரி சுவாசம் கழிக்கிற மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி வேதத்தை பண்ணினார் என்றது சொல்லப்படுகிறது अस्य इदमेव तत् प्रतिपादकं वाक्यम् अस्य अधिकरणस्य विषयः ब्रह्मणः वेदकर्तृत्वं युक्तं न वा इति सन्देहः श्रूयते परन्तु युक्तं भवति वा इदं श्रूयते इति सत्यं ஆனால் இது சரியாக இருக்குமா என்றது நமக்கு சந்தேகம் வருது युक्तं न वा इति सन्देहः न युक्तं इति पूर्वपक्षः ஏன் பூர்வபக்ஷம் அப்படி வருது वाचा विरूप नित्यया इत्यादेः वाचः नित्यत्व प्रतिपादिकायाः श्रुतेः विरोधात् श्रुति विरोधവും இருக்கு யுக்தி விரோதமும் இருக்கு ரெண்டும் இருக்கு ஒன்று வந்து இன்னொரு ஸ்ருதி என்ன சொல்கிறது வாச்சா விரூப நித்ய வேத விஷய வேதத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஸ்ருதி அந்த ஸ்ருதி என்ன சொல்கிறது நித்யான்னு சொல்கிறது வேத வாக்கியங்கள் நித்தியம் நித்யா வாச்சான்னு அன்வயம் விரூபான்னு அங்கே வந்து அது பூர்ணமாக வாக்கியம் தெரியாது இது பிரசித்தமாக உதாரணம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அது பூர்ணமாக வாக்கியம் அப்படி தெரியாது பார்க்கணும் இவர் கோட் பண்ணியிருக்காரா பார்க்கணும் இல்லை போல இருக்கு अस्तु तत्र विरूप इति सम्बोधनं कस्यचित् सम्बोधनं कृत्वा नित्यया वाचान् அந்த ஸ்ருதியில் வருது இல்லையா நமக்கு அதுதான் தேவைப்படுறது வேதவாக்கியம் வேதத்தை பற்றி நித்தியம்னு விசேஷனம் போட்டிருக்கு நித்தியமாக இருந்தால் உற்பத்தி இருக்கக்கூடாது தரி பரமாத்மனா விரச்சிதம்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு காளிதாசர் ஒரு காவியம் பண்ண மாதிரி பரமேஸ்வரனால் வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு விரச்சிதமாக இருக்குன்னு சொன்னால் நித்தியம் எப்படி வரும் அப்போ நித்தியத்துவம் விரச்சித்துவம் ரெண்டும் கூட சேராது அதனால் ஸ்ருதி விரோதம் இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்ருதிக்கு முக்கியார்த்தம் எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த ஸ்ருதி வேத பரமேஸ்வரः வேதான் கரோதி இत्यर्थे வியாக்கியானம் நார்ஹதி அப்படி வியாக்கியானம் பண்ணக்கூடாது அந்த வாக்கியத்துக்குன்னு பூர்வபக்ஷம் तेन वाक्येन विरोधो भवति ஒரு ஸ்ருதிக்கு அர்த்தம் சொல்லும்போது இன்னொரு ஸ்ருதிக்கு விரோதம் வரக்கூடாது இல்லையா வேதானாம் பிரம்மகாரியத்வே பௌருஷேயத்வாத் அப்ராமான்ய பிரசங்காச்ச பௌருஷேயத்துவம் வரும் அதுவும் கவலை தான் வேதானாம் பிரம்ம காரியத்துவம் यदि उच्यते परमात्मनः कार्यं वेदः इति उच्यते चेत् பௌருஷேயத்துவம் ஸ்ருதேः अपौरुषेयत्वं சொல்ல முடியாமல் போயிடும் பௌருஷேயத்துவம் வரும் ஏன்னா ஈஸ்வரேण कृतं वर्तते तर्हि केनापि पुरुषेण अविरचितत्वम् अपौरुषेयत्वं
इति वक्तव्यमस्ति। तर्हि अस्तु अपौरुषेयत्वं मास्तु पौरुषेयत्वमेव भवतु इति उच्यते चेत् अप्रामाण्यप्रसङ्गाच्च। कथम् अप्रामाण्यं? पौरुषेयं पुरुषेण उक्तं सर्वम् अप्रमाणं भवति वा? केनचित् पुरुषेण उक्तं चेत् अप्रमाणं भवति वा? स्व इच्छानुरोधेन कृतं स्यात्। इच्छानुरोधेन इच्छानुसारेण उक्तम् इति कृत्वा अप्रामाण्यं भवति इति नास्ति किल। अस्माभिरपि इच्छापूर्वकं किञ्चित् उक्तम्, अदनाल अदु अप्रमाणम् अपि वरादु इल्लैया? परन्तु भवता किम् उच्यते, रागद्वेषादि संभावना भवति, அதனால அப்பிரமாணம்னு வராது, ஆனால் பிரமாணம்னு நிச்சயமும் பண்ண முடியாமல் மாறி இருக்கும், அப்படி சொல்ல. அப்பிரமாணம் ஆயிடுமோ தெரியாது, ஆனால் பிரமாணம் என்ற நிச்சயம் ஆப்தோச்சரிதமாக பிரமாணம் சொல்லணும் இல்லையா? பௌருஷய வாக்கியம் எப்போ பிரமாணம்? ஆப்தோச்சரிதமாக இருந்தார். अस्तु, इदानीम् ईश्वरेण उच्चरितम्, ईश्वरः आप्तः, ईश्वरस्य मनुष्येण उच्चरितम् इति नोच्यते खलु, मनुष्येण विरचितम् इत्युच्यते चेत् बहुदुक्तदोषः स्यात्। येन मनुष्याणां रागद्वेषादिसम्भावना वर्तते, भ्रमादिसम्भावना वर्तते, பிரமிச்சுன்னு சொல்கிறதா கூட இருந்தால் இன்னொருத்தரை இது வஞ்சனை பண்ணுறதுக்கு இல்லை, பொய் சொல்லணும்னு நினச்சி பொய் சொல்ல, பிரமிச்சாச்சுன்னா என்ன வருது பண்ணுறது இல்லையா? மனுஷியானாம் பிரமஹ சம்பாவியத்தை. அதனால் மனுஷியால் சொல்கிறதா இருந்தால் அது நம்பிக்கை வைக்க முடியாது. சரியாக கூட இருக்கலாம், தப்பாக கூட இருக்கலாம். தெரிஞ்சுண்டு இன்னொருத்தனை இது பண்ணுறதுக்கு, வஞ்சனை பண்ணுறதுக்கு தப்பாக சொல்கிறவா உண்டு, தெரியாமலே தப்பாக சொல்கிறவா உண்டு, எல்லாமே இருக்குது லோகத்தில். அப்போ மனுஷேன உச்சரித்தம், மனுஷ்ய விரச்சிதம்னு சொன்னால் அப்பிராமாண்யம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்குது. ஆனால் பரமாத்மனா விரச்சிதம் தானே சொல்கிறது, ஈஸ்வரேण உச்சரிதாக வேதாக ஈஸ்வரேण விரச்சிதாக इत्युच्यते चेत् कथम् अप्रामाण्यम्? ईश्वरेण अस्मिन् काले वेदः कृतः चेत् तस्य नित्यत्वभङ्गो भवति, அது இருக்கட்டும். அந்த அந்த ஒரு குழப்பம் இருக்குது, तदस्तु. परन्तु चतुर्णामुखानां वेदाः उत्पत्तिः अस्तु, चतुर्णां मुखानाम् उत्पद्यते, एकेन मुखेन उत्पद्यताम्, ईश्वरस्य मुखात् खलु उत्पद्यते. ईश्वरस्तु प्रामाणिकः इति स्वीकर्तुं शक्यते. तर्हि वेदस्य अप्रामाण्यं कथम् इत्युक्ते, ईश्वरः कथं सिद्धः? அங்கே அந்யோன்யாசிரியம் வருப்பா, न्यायशास्त्रத்திலே சொல்றது இல்லையா? ईश्वरः कथं सिद्धः கேள்வி வரும். सर्वज्ञः ईश्वरः कथं ஈஸ்வரன் இருக்குன்னு எப்படி கிடைச்சது உனக்கு? சர்வஜனான ஒரு ஈஸ்வரன் பிரமாதி ராகத்வேஷாதி ரஹிதः, भ्रमादिरहितः सर्वज्ञः कश्चित् ईश्वरः अस्ति इति त्वया कथं ज्ञातम्? अनुमानेन इत्युक्ते अनुमानस्य कथा ह्यः उक्ता समाप्ता. अनुमानத்தினால ஏதோ ஒரு அப்பேற்பட்ட ஒரு ஈஸ்வரன் இருக்கலாம்னு ஒரு சம்பாவனை வரலாம், அவ்வளோதான். சம்பாவனா தெரியுமா? சம்பாவனா, சம்பாவனான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது சாஸ்திரத்தில், தெரியாதா? உத்கட ஏகதர கோடிக சந்தேக சம்பாவனா, உத்கட ஏகதர கோடிக சந்தேகம்தான், ஆனால் இப்படி தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ற மாதிரி வரும் இல்லையா? கஷ்டித் தூராத் ஆகச்சதி, कश्चित् दूरात् आगच्छति, कः आगच्छति? देवदत्त एव स्यात् इत्युच्यते खलु. अयं वस्तुगत्या निश्चयो नास्ति, நிச்சயமாக இருந்தால் ஸ்யாத்னு இருக்கு சொல்லணும். தேவத்தன் தான் தோன்றது சொல்கிறது இல்லையா? இந்த ஒரு அனுபவம், இதுக்கு சம்பாவனான்னு பேர். உண்மையாக இது சந்தேகம் தானே, परन्तु सन्देहस्य यथा कोटिद्वयं भासते तथा न भासते. தேவதத்தோ வா நவா ரெண்டும் துல்லிய பலமாக இருந்தால் நமக்கு சாதாரணமாக சந்தேகம்னு சொல்லுவோம். தேவதத்தோவா யஜ்ஞதத்தோவா அப்படி இருந்தால் சந்தேகம். 2 கோடி, 2 கோட்டியும் துல்லிய பலமாக இருந்தால் தேவதத்தோவா யஜ்ஞதத்தோவா अथवा தேவதத்தோவா நவா इति न इति पक्षेपि काश्चन युक्तयः सन्ति, देवदत्त एव इति पक्षेपि काश्चन युक्तयः सन्ति. அப்படி இருந்தால் 2 கோட்டியும் துல்லிய பலமாக இருந்தால் சந்தேகம்னு சொல்லுவோம் சாதாரணமாக.
விருத்த நானாதர்மாக எல்லாமே துல்லியபலமாக இருக்கணும். ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஒரே மாதிரி அப்படி இருந்தால் சந்தேகம். அது இல்லாமல் 2 கோடி இருக்குது, இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இது தேவதத்தனாக இருக்கிறதுக்கு தான் சான்ஸ் ஜாஸ்தி. அப்படி வரும் இல்லையா? தரி தேவதத்தையவ சியாத் இது பிரயோகः பவதி. அந்த பிரபலமான கோடியை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஆனைக்கு சம்பாவனாகன்னு சொல்கிறது இல்லையா ஹிந்தியில்? வர்றதுக்கு தான் சான்ஸ் ஜாஸ்தின்னு அர்த்தம். வராமல் இருக்கிறத விட அந்த மாதிரி तर्हि संभावना सा करेक्ट् वार्ता अनागमनपक्षोपि अस्ति परन्तु आगमनपक्षः प्रबलः अपडि इरुंदा संभावनेनु सोल्लुवोम. किमर्थं मया उक्तम् इत्युक्ते ईश्वरानुमानेन ईश्वरसिद्धिति वा इत्युक्ते ஈஸ்வரானுமானம் நிரூபணத்தினால என்ன கிடைக்கிறதுனா இந்த தர்க்கங்கள் எல்லாம் நீங்கள் போட்டு பிரபலமாக அனுமானத்தை கொண்டு வந்து காமிச்சா கூட ईश्वरः भवितुम् अर्हति. ईश्वरः नास्ति इति पक्षापेक्षया अस्ति इति पक्षः बलीयान् அந்த அளவுக்கு கிடைக்கும். अस्ति इति पक्षः बलीयान्. तर्हि ईश्वरविषये सम्भावनां जनयति इदम् अनुमानं न तु निश्चयम् इति अन्ततो गत्वा वेदान्तिनां मतम् अद्वैतनामपि अयमेव अभिप्रायः. ஏதைரபி ஆச்சாரியைः ததைவ உக்தம் வர்த்ததே. இப்போ என்னாச்சுனால் ஈஸ்வரः அனுமானேன சித்தியன் ஈஸ்வரः சர்வஜ்ஞத்வேன சம்பாவ்யதே, ராகத்வேஷாதிரஹிதத்வேன சம்பாவ்யதே, ஏகத்வேன சம்பாவ்யதே. அவ்வளோதான். தத் நிச்சயோ ந பவதி. यावत्पर्यन्तं निश्चयो न भवति तावत्पर्यन्तम् अनुमानेन सिद्धम् ईश्वरम् आदाय तदुच्चरितत्वेन वेदस्य प्रामाण्यम् अस्माभिः समर्थयितुं न शक्यते. तर्हि वेदस्य प्रामाण्यं सर्वज्ञेन ईश्वरेण उच्चरितत्वात् ईश्वरः कथं सिद्धः इत्युक्ते अनुमानेन ईश्वरः कथं सिद्धः इत्युक्ते अनुमानेन इत्युच्यते चेत् सम्यक्. अनुमानेन न सिद्धः खलु. नैयायिकाः किं वदन्ति ईश्वरस्तु अनुमानेन सिद्धः इति तेषाम् अभिमानः वर्तते. அது ஒரு அபிமானம் தான், அது நடக்கிற வேலை இல்லை என்றது தீர்மானம் ஆயிடுத்துன்னா இப்போ என்ன வழி? வேதாதேவ ஈஸ்வர சித்தியதி இது வக்தவியம், வேதாதேவ சித்தியதி இது வக்தவியம். சச்ச வேதः கதம் பிரமாணம்? ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं न निर्णीतम् एतावता, सम्भावितं तावदेव. तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते वेदस्य अपौरुषेयत्वं वक्तव्यं. वेदस्य अपौरुषेयत्वेन प्रामाण्यं वक्तव्यं, न तु ईश्वरोच्चरितत्वेन. शर्या? तर्हि ईश्वरेण विरचिताः वेदाः इति पक्षस्त्यक्तव्यः. यदि ईश्वरेण विरचिताः वेदाः स्युः तर्हि वेदस्य प्रामाण्यं नैव सिद्ध्येत्. विषयं पुरीयते. अतः पूर्वपक्षी किं मन्यते? तस्मात् ब्रह्मणः वेदकर्तृता कथम् इति आक्षेपार्थे नैव भवति. वेदकर्तृत्वं वेदं प्रति ईश्वरस्य कर्तृत्वं न वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षः. इदु सिद्धान्तमिल्ल, पूर्वपक्षः. एवं प्राप्ते ब्रूमः अनारम्भिच सिद्धान्तम् इप्पि युक्तमेव ब्रह्मणः वेदकर्तृत्वं युक्तमेव. अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद्-ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः इति श्रुतेः निश्वसितवत् वेदराशेः अप्रयत्नेन ब्रह्मणः प्रादुर्भाव अवगमात्. प्रथमतः किमुच्यते? ஒரு प्रतिज्ञा मादिरि श्रुतिवाक्यं சொல்லுதில்லையா? ஒத்துக்கணும். अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः इत्यादि श्रुतेः निश्वसितवद् वेदराशेर अप्रयत्नेन ब्रह्मणः प्रादुर्भावावगमात्. अर्थं वदतु. ब्रह्मणः प्रादुर्भावः, प्रादुर्भावो नाम उत्पत्ति, प्रादुर्भावो नाम उत्पत्तिः. कस्य उत्पत्तिः? वेदराशेः. ब्रह्मणः इति पञ्चमी, ब्रह्मत्तिलिरुंदु अर्थं. ब्रह्मण सकाशात् अप्रयत्नेन वेदराशेः ब्रह्मणात् मुखात् तदेव उच्यते.
ब्रह्मणः मुखादेव वेदराशिः उत्पन्नः इति श्रुत्या उच्यते. அப்பிரயத்னேன வேதராசேः பிராதுர்பாவः. அவருக்கு பிரயத்னமே இல்லாமல் வேதத்தை அவர் பண்ணினார் என்றது தெரிகிறது. அஷ்டாதசானாம் ஏதாசாம் வித்யானாம் பின்னவர்த்மனாம் ஆதிகர்த்தா கவிஹி சாக்ஷாத் சூலபாணிஹி இதி ஸ்ருதிஹி இத்யபி அஸ்தி ஸ்பஷ்டம். इति परमेश्वरस्य सकलविद्या कर्तृत्व प्रतिपादनाच्च सृष्टेः प्राक् स्वात्मनि विलीनानां वेदानां पूर्वपूर्ववर्णानुपूर्व्य अनुरूप रचनया पुनः कर्ता भवति सर्वज्ञः परमेश्वरः. இங்கே தான் நமக்கு சித்தாந்தம் யுக்தி இங்கே தான் வந்துடுது. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வேதस्य प्रामाण्यं तु ईश्वरोच्चरितत्वेन इति न अपौरुषेयत्वेनैव. एवं तर्हि ईश्वरः वेदं करोति रचयति करोति इत्युक्ते பௌருஷேயத்துவம் தானே. நீங்கள் ரெண்டும் கலர்ந்து பேசுகிறது எப்படி? இதுக்கான கேள்வி. ஈஸ்வரோச்சரிதத்துவம் ஒத்துக்கிறேன், அபௌருஷேயத்துவம் ஒத்துக்கிறேன். அது எப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. இந்த अपौरुषेयत्वம்னா என்ன தேவைப்படுறது? வேதः நித்யः इत्युच्यते खलु. नित्यः इत्यस्य अर्थः कः? केळ्वि वरु. नित्यः प्रलयकालेपि न नश्यति. प्रलयकाले इत्युक्ते पश्यन्तु, नित्यः इत्युक्ते आत्मा नित्यः, आकाशः नित्यः சொல்கிற மாதிரி துவம்ச அப்பிரதியோகித்துவம்னு அர்த்தம் இல்லை இங்கே. அது அந்த ஆணுபூர்வி இருக்கு இல்லையா? இப்போது வர்ணங்கள் நித்தியமோ அனித்தியமோன்னு ரெண்டு பட்சம். அத்தோகத்துவ வேதோ நாம சப்த சமூக கலு. அது எப்படி நித்தியமாக இருக்க முடியும்? இப்போ நீ வேதம் சொல்கிறதா இருந்தால் உன்னுடைய வாயால் வந்தது இல்லையா அது? அப்போது அப்படியே ஒரு கூட்டஸ்த நித்தியம் சொல்ல முடியாது. ஆத்மா நித்யா ஆகாஷா நித்யா நையாயிகாக ஏதா வதந்தி கலு. துவம்சமே வராது. துவம்ச அப்பிரதியோகி என்ற அர்த்தத்தில் புரியுது இல்லையா? शब्दस्तु विनश्यति. शब्दस्य विनाशित्वं वर्तते लोके प्रसिद्धम्. अतः द्विक्षणावस्था इत्यं नैयायिकाः சொல்லுவார். द्विक्षणावस्थायमो इतोपि किञ्चित् तिष्ठतु यथा कथञ्चित्. नश्यति इत्यत्र विवादो नास्ति. शब्दस्तु नश्यति. मम पक्षे वेदः आदिः अस्ति, अन्तः नास्ति इति. आदिः कथमस्ति? अन्तः आदिः अस्ति चेत् अन्तः अपि नास्ति अस्ति एव. आदिः अस्ति चेत् अन्तोपि अस्ति. அதுதான் நானும் சொல்கிறேன். आदिः इருக்கு अन्तः इருக்கு. ब्रह्मणा मुखात् उत्पद्यते इत्येव उच्यते. इदानीं ब्रह्मणा मुखात् इति किमर्थं? तव मुखादेव उत्पद्यते खलु. சிருஷ்டியாதியில் தான் பிரம்மம் தேவைப்படுறது. இப்போ நமக்கு வாத்தியார் இருக்கு இல்லையா சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு? பிரம்மமே சொல்லிக் கொடுக்கணுமா? गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारणेनैव वेदः उत्पद्यते इत्येव. यतः कथम् उत्पद्यते इत्युक्ते अन्त उत्पद्यते इत्युक्ते शास्त्रीयरीत्या द्रष्टव्यं. वेदो नाम वर्णसमूहः, वाक्यसमूहः, वाक्यं पदसमूहः, पदं वर्णसमूहः. वर्णस्तु नित्यः इति कश्चन पक्षो वर्तते. அந்த பட்சம் ஒத்துக்கிறதா இருந்தால் கூட வர்ண ஆனுபூர்வி அனித்யா பவதி. ஆனுபூர்வின்னா என்ன? ஆனுபூர்வினா கிரமஹ இत्यर्थः. கிரமः ஏதோ ஒரு கிரமத்தில் வர்ணங்கள் சொன்னால் வேதமாக வருமா? வராது. तेन क्रमेणैव वक्तव्यं. तर्हि पश्यन्तु, एतद् वर्णोत्तरत्वविशिष्ट तद्वर्णोत्तरत्वविशिष्ट तद्वर्णोत्तरत्वविशिष्ट இதுதானே ஆனுபூர்வி. இப்படி சொல்லணும் ஆனுபூர்வின்னு சொன்னால். घटः इत्यत्र का आनुपूर्वी वदतु? घटः विसर्गः சொல்லக்கூடாது. विसर्गत्वं. कुतः? आनुपूर्वी पदधर्मः. इति गमनिंचुको. आनुपूर्वी पदधर्मः, पदे विद्यमानः धर्मः. अतः एवञ्च पदे यथा धर्मत्वेन तिष्ठति तथा निर्देशः कर्तव्यः. ढकारोत्तर अकारोत्तर टकारोत्तर अकारोत्तर विसर्गत्वम् आनुपूर्वी इति वक्तव्यम्. इदं वर्णानुपूर्वीयम्. एवं पदानुपूर्वी अपि भवति. वेदे पदानां क्रमः नियतः. येन केनचित् क्रमेण न वक्तव्यः. विकृतिषु तु विशिष्य विधानं वर्तते इति कृत्वा तथा क्रमभेदः क्रियते खलु. घनादिपाठेषु क्रमपाठे घनपाठे भिन्नभिन्नक्रमः तथा विशिष्य विधानात्. संहितापाठे कथं वर्तते? स्वेच्छया यत्किमपि पदं यथा कथञ्चित् वक्तुं शक्यते वा? तर्हि वर्णानुपूर्वी नित्या, பதானுபூர்வி நித்யா இத்தியஸ்தி. இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல நித்யா நித்யான்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்?
नित्या नित्या न पेशुरं नित्या इति वाक्यं पदम् आगच्छति अस्माभिः उच्यते नित्या इत्यस्य अर्थः कः पूर्वस्मिन् युगे यथा अपरिवर्तनीया इत्यर्थः அந்த துவம்சா பிரதியோகின்னு அர்த்தம் இல்லை நம்ம இஷ்டப்படி பரிவர்த்தனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அர்த்தம் புரியுறதா அதுக்கு பரிவர்த்தனம் பண்ணக்கூடாது நித்தியம் என்று இது பதம் बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते नित्यकर्म इति उच्यते खलु कर्म नित्यमा ध्वंसा प्रतियोगिया இல்லையே அங்கே அங்கே என்ன அர்த்தம் அவசிய கர்த்தவியம்னு அர்த்தம் நித்திய கர்மான்னு சொன்னால் அவசிய கர்த்த பிரதிதினம்னு கூட அர்த்தம் இல்லை பிரதிதினம்னு அர்த்தம் இல்லை ஸ்ராத்தம் நித்தியம் பிரதிதினம் பண்ணுறதா उपनयनं नित्यम् उपनयनं नित्यम् इति उच्यते खलु उपनयनं नित्यकर्म नित्यम् इति उच्यते अवश्यकर्तव्यम् इत्यर्थे शास्त्रेषु नित्यम् इति पदप्रयोगः अब नित्यम् इति पदं श्रुत्वा न भ्रमितव्यं बहुषु अर्थेषु प्रयोगः अस्ति वेदाः नित्याः वेदवाक्यानि नित्यानि इत्युक्ते नियतानुपूर्वीकानि वेदगतेषु पदेषु वेदगतेषु सर्वेषु पदेषु वर्णानुपूर्वी नियता घटहाன்னு சொல்ல வேண்டிய இடத்துல டகான்னு சொன்னால் அர்த்தம் வராது அது வேறு வேறு விதமாகிடும் பதேஷு சர்வத்திர சர்வேஷு பதேஷு வேதத்தில் இருக்கிற பதம் மட்டும் இல்லை சர்வேஷு பதேஷு வர்ணானுபூர்வி நித்யா घकारोत्तर इत्यादि आनुपूर्व्या यदा उच्यते तदानीमेव घटपदमिदम् इति वक्तुं शक्यते इल्लना वेरे एदो पदं सरः रसः सरः रसः अर्थभेदं मन्त्रतुल्यः वर्णानुपूर्वी भिन्ना तर्हि नियतवर्णानुपूर्वीकत्वं पदे सर्वेषु पदेषु वेदत्तिल मट्टुमिल्ल वेदत्तिल एन्न विशेषं न वाक्येषु पदानुपूर्वी अपि नियता संहितायां वाक्यानुपूर्वी अपि नियता अर्थं पुरियदिल्लया एतत् पदानन्तरम् एतत् पदम् इत्यपि नियमो वर्तते एतद् वाक्यानन्तरम् एतद् वाक्यम् इत्यपि नियमो वर्तते तेन क्रमेण यः अधीते स एव वेदमधीते इति वदति वक्तुं शक्यते अन्यथा अन्यत् किमपि तद्वत् माडल् करोति इत्येव स्यात् இந்த ஒரு இது நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வச்சுட்டு இருக்கோம் வேதத்தை பற்றி சொல்லும்பொழுது யத்னதः பிரதிஷேத்யா நஹ புருஷாணாம் ஸ்வதந்திரதான்னு குமாரில பட்டர் வார்த்திகத்தில் சொல்கிறார் யத்னதः பிரதிஷேத்யா நஹ अस्माकं मते नः मते अन्ततो गत्वा किमस्ति किं प्रतिषिध्यते इत्युक्ते पुरुषाणां तत्र स्वतन्त्रता प्रतिषिध्यते पुरुषाणां स्वतन्त्रता इत्यस्य अर्थः कः தனக்கு இஷ்டப்படியாக ஏதோ ஒன்று சொன்னால் அதுவும் வேதமாயிடும் என்றது ஒத்துக்க முடியாது அவ்வளோதான் அக்னி மீளே புரோகிதம் வன்னி மீளேன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அர்த்தம் அதுதானே கேட்டால் அது வேதம் சொல்ல முடியாது ஸ்வகீயம் தாவதேவ अस्ति अस्ति अतः किं कृतम् अन्ततो गत्वा इत्युक्ते वेदस्य ध्वंसाप्रतियोगित्वरूपं नित्यत्वं कदापि न अपेक्ष्यते अतः अस्माभिरुच्यते चेदपि तस्य आनुपूर्व्याः आनुपूर्वी इत्युक्ते अव्यवहित उत्तरत्वम् इति वक्तव्यम् इदं पदम् एतत् पद अव्यवहितोत्तरम् इत्यस्य अर्थः कः कालभेदेन खलु तद्भवति अव्यवहित उत्तरत्वम् अस्मिन् पदे कथं लभ्यते इत्युक्ते अस्माकं कण्ठताल्वादि प्रयत्नेन खलु एतत् पदस्य उच्चारणाय यः प्रयत्नः तं प्रयत्नं कृत्वा अनन्तरमेव तत्पदस्य उच्चारणाय अस्माभिः प्रयत्नः क्रियते तर्हि अस्मदीय प्रयत्नेन निष्पन्ना किल एवम् आनुपूर्वी அது இல்லைன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது तर्हि वेदस्य उच्चारणमात्रेण अत्र अपौरुषेयत्वभङ्गो नास्ति वेदः केनचित् उच्चरितः इत्येतावता अपौरुषेयत्वं यदि भज्येत तर्हि इदानीं सर्वैरपि अस्माभिः उच्चार्यते इति कृत्वा अपौरुषेयत्वं न स्यादेव அதனால் அந்த மாதிரி अपौरुषेयत्वं யாருமே சொல்ல விரும்பலை तथा च कल्पादौ ईश्वरः वेदान् उच्चरितवान् इत्येव खलु अपेक्षते उपदिष्टवान् इत्यपेक्षते तेन अपौरुषेयत्वभङ्गो नास्ति परन्तु भवेत् यदि ईश्वरः स्वकीयानि वाक्यानि प्रयुक्तवान्
कालिदासः रघुवंशं रचयति इत्युक्ते अन्यस्य कवेः वाक्यानि दृष्ट्वा तथैव रचयति वा? नास्ति, स्वकीयानि वाक्यानि रचयति, तस्मात् तत् पौरुषेयम्, अद् पौरुषेयम्। ईश्वरस्तु किं करोति? गतकल्पीयं वेदं तथैव स्मृत्वा उपदिशति, नूतनं न करोति। स्वस्मिन् यत् विलीनं सञ्जातं सत्यं तावदेव. அப்போ ஈஸ்வரஸ்ய அபேட்சை என்ன இருக்குன்னா, இது கல்பாதியில் யுகாந்தே அந்தர்ஹிதான் வேதான் சேதிஹாசான் மகர்ஷய லேபிரே தபசா பூர்வம் அனுஜ்ஞாதா ஸ்வயம்புவான்னு இருக்கு. அது புராணத்திலேயெல்லாம் அப்படி தான் தெரியறது. ஏதோ மகாத்மாக்கள் இருந்திருக்கார், அந்த வேதத்தை கிரகிக்கிறதுக்கு சாமர்த்தியம் உடையவா இருந்திருக்கா. கல்பாதியில் அவளை சிருஷ்டி பண்ணி வேதோபதேசம் கிருத்தவான் ஈஸ்வரஹான்னு இருக்கு. தர்ஹி இந்த கல்பனை எப்படி இருக்குன்னா, கஷ்டித் உபாத்தியாயः வேதாध्यापकः वेदपाठं कृत्वा रात्रौ सुप्तः दिवा पुनः स्मरति खलु, स्मृत्वा अन्येभ्यः उपदिशति, पुनः उपदिशति. अनेन पौरुषेयत्वं सिद्ध्यति. என்ன भवति खलु, पौरुषेयत्वं न पद्यते, ஒன்றும் வராது இல்லையா? ஏன்னா पूर्वं यद् उक्तं तदेव तेन पुनः पाठ्यते. तद्वत् सुप्त इव सर्वोपि सुप्तः, ईश्वरस्तु तत् स्मर्तुं प्रभवति. तादृशः महिमा तस्य वर्तते इति कल्प्यते चेत् पर्याप्तं. तावता उरु इदं वरदिल्ल. सजा तर्हि किं जातम् इत्युक्ते, सजातीय आनुपूर्वीम् अपेक्षैव ईश्वरः उच्चारयति. இது வச்சுட்டு பரிஷ்காரம் பண்ணுவார். பௌருஷேயத்துவம்னா என்ன, அபௌருஷேயத்துவம் என்ன? सजातीय आनुपूर्वीम् अनपेक्ष्य सजातीय आनुपूर्व्य अनपेक्षोच्चारण विषयत्वं पौरुषेयत्वं. सजातीय आनुपूर्व्य अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम् अर्थं पुर्यते. आनुपूर्व्य अनपेक्ष्य भवान् भवदीयं वाक्यं किञ्चित् मां वदति. कथं वदति इत्युक्ते अन्येन केन इदम् उक्तं, केनापि नोक्तं, मया एव उक्तम् इत्युक्ते भवदीयं वाक्यं भवता रचितं, तत्रत्य पदानुपूर्वी भवता विवक्षितः कश्चन विषयः वर्तते, तद् वक्तुं भवान् इच्छति. कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते तद् बोधकानि पदानि सङ्गृह्णाति, तत् यथा श्रोता अवगच्छेत् तेन क्रमेण विन्यस्य प्रकटयति. इदं भवदीयं वाक्यं. तत् सजातीय आनुपूर्वी पूर्वं श्रुता वा? नास्ति. सजातीय आनुपूर्वीम् अनपेक्ष्य उच्चरितमिदं. तर्हि सजातीय आनुपूर्वीम् अनपेक्ष्य उच्चरितं वाक्यं चेत् पौरुषेयं वाक्यं. तथा नास्ति चेत् अपौरुषेयं, तावदेव. इति वेदानाम् अपौरुषेयत्वं भज्यते इति नास्ति. ईश्वरेण कल्पारम्भे सजातीय आनुपूर्वी अपेक्ष्य गतकल्पीयं वेदं स्मृत्वा तत् अन्येन स्मर्तुं न शक्यते. अत एव ईश्वरस्य कश्चित् महिमा भवति. एवञ्च वेदस्य प्रामाण्यं कथं सिद्धम् इत्युक्ते ईश्वर उच्चरितत्वेन इति न, ईश्वरेण उच्चरितं नास्ति इति नोच्यते. यथा उपाध्यायेन इदानीम् उच्चार्यते तद्वदेव. ईश्वरः अन्यः कोऽपि नास्ति तत्र उपदेष्टा. तर्हि तद् उपदेष्टृत्वेन तस्य अपेक्षायां सत्यामपि स तु न विरचयिता, ईश्वरोऽपि न विरचयिता. विरचयिता इति कदा व्यवहारः मया एव कृतं चेत् मया विरचितम् इति उच्यते. अन्यस्य इदानीं पश्यन्तु, अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति मया उच्यते. मया विरचितं वा इदं? न, मया उच्चरितं, कालिदासेन विरचितम् इति. तर्हि विरचितम् इति कदा पदप्रयोगः? सजातीय आनुपूर्वीम् अनपेक्ष्य उच्चरितं चेत् विरचितम् इति पदप्रयोगः. तत्तु नेष्यते. अतः कोऽपि क्लेशो नास्ति. तस्याः श्रुतेः अर्थस्तु यथावदेव वक्तुं शक्यते. वाचा विरूप नित्यया इति श्रुतं खलु, इत्युक्ते नित्या इति शब्दस्यापि अर्थः कः? मया उक्तम्, अपरिवर्तनीय आनुपूर्वीकत्वम् अर्थः अवगतः खलु. अपरिवर्तनीया आनुपूर्वी, न परिवर्तनीय, आनुपूर्व्याः परिवर्तनं न कर्तव्यम्. अनन्तरं लिखतु, इदानीं मास्तु. लिखितुमारभ्यते चेत् बहु लेखनीयं स्यात्. लेखनीयं, पश्चात् लिखतु. सर्वं विलिख्य स्थापनीयम्. इदानीं मास्तु, केवलम् अवगत्य गच्छतु तावदेव. तर्हि एवं रीत्या ईश्वरेण कल्पादौ उच्चरितम् इत्येतावन्मात्रेण वेदस्य अपौरुषेयत्वभङ्गो नास्ति. अतः
अपौरुषेयत्वं संरक्ष्यैव अस्माभिः ईश्वरोच्चरितत्वं च स्वीक्रियते तयोर्विरोधो नास्ति इत्यागतम् सृष्टेः प्राक् स्वात्मनि विलीनानां वेदानां पूर्वपूर्ववर्णानुपूर्व्य अनुरूप पूर्वपूर्ववर्णानुपूर्व्य अनुरूप पूर्वपूर्ववर्णानुपूर्व्य अनुरूप पूर्वपूर्वा या वर्णानुपूर्वी वेदे तादृश आनुपूर्व्याः अनुरूप आनुपूर्व्यनुरूप अनुरूपरचनया पुनः कर्ता भवति सर्वज्ञः परमेश्वरः पुनः सः कर्ता भवति इत्युच्यते कर्ता भवति इत्युक्ते अयमेव अर्थः इति स्वयमेव किञ्चित् नूतनं वाक्यं सः वदति इति न तस्मात् कर्ता भवति इत्यस्य एतावानेव अर्थः वक्तव्यः अत एव वेदानाम् अपौरुषेयत्वम् ईश्वरकार्यत्वं च इत्थमेव वेदानाम् ईश्वरकार्यत्वं समर्थनीयम् अपौरुषेयत्वं च रक्षणीयम् இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை தெரியாமல் நம்ம ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது அப்படி இருக்கக்கூடாது येषां रागद्वेषादयः तेषां वचनम् अप्रमाणम् अपि भवति समस्तदोषाशङ्कस्य निरुपप्लवनिरतिशय प्रत्यक्षानुभूयमान त्रैकालिकवस्तुविलासस्य स्वतःप्रमाणस्य परमेश्वरस्य परमाप्तस्य अवाप्तसमस्तकामस्य शिवस्य ब्रह्मणः वचनं तु प्रमाणम् एव भवति इदानीं पश्यतु अपौरुषेयत्वेन वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धम् अपौरुषेयत्वेन वेदस्य प्रामाण्ये सिद्धे तादृशेन वेदेन बोधितत्वात् परमेश्वरस्यापि प्रामाण्यं लभ्यते तथा च इदानीं परमेश्वरेण उक्तत्वात् वेदस्य किं तत्र आशंका न कर्तव्या इति परमेश्वरेण उक्तं सः रागद्वेषादिरहितः इति वेदेन उच्यते वेदस्य प्रामाण्यं कथं परमेश्वरेण उक्तत्वात् न वक्तव्यं पूर्वं तु किम् उक्तम् ईश्वरसिद्धौ किं प्रमाणम् इत्युक्तौ श्रुतिरेव प्रमाणम् इत्युक्तं श्रुतेः प्रामाण्यसिद्धौ ईश्वर उक्तत्वात् श्रुतेः प्रामाण्यम् इत्युक्तम् इति कृत्वा अन्योन्याश्रयः शङ्कितः इप अन्योन्याश्रयमिल्ल वेदस्य प्रामाण्यं कथम् अपौरुषेयत्वात् तावदेव एवं ईश्वरः कथं सिद्ध्यति वेदात् ईश्वरः निरस्तसमस्तदोषाशङ्कः कथं सिद्ध्यति वेदात् वेदस्य प्रामाण्यं कथं सिद्ध्यति ईश्वरोच्चरितत्वात् न अपौरुषेयत्वात् इति वक्तव्यम् अतः दोषो नास्ति इति इंग इन्नोरु विषयं सोल्लोण एतावता अपौरुषेयत्वं कथं सिद्धम् अपौरुषेयत्वे विरोधो नास्ति इत्युक्तम् एतावता अपौरुषेयत्वे युक्तिः का वेदस्य अपौरुषेयत्वे केनापि पुरुषेण न विरचितम् इत्यत्र का युक्तिः அதுக்கு என்ன தெளிவு அது இன்னும் சொல்லல அது சொல்லணும் இல்லையா एतैः नोक्तम् इति भाति मीमांसायां प्रसिद्धम् इति कृत्वा त्यक्तं तावदेव तत् पठित्वा खलु आगन्तव्यम् अतः तत्र बहु वक्तुं शक्यते एकम् अंशं केवलं मनसि स्थापनीयं मुख्यम् एकम् अंशम् अहं वदामि ரொம்ப சரளமான யுக்தி कर्तुः अस्मरणात् कर्तुः अस्मरणात् अवश्यस्मर्तव्यस्य कर्तुः अस्मरणात् तावदेव वेदः अपौरुषेयः अवश्यस्मर्तव्यस्य कर्तुः अस्मरणात् अनुपलब्धि प्रमाणं சொல்றது இதுக்கு தான் அனுபலப்தி பிரமாணம் இது எவ்வளோ சரளமாக புரிய வைக்கமோ முடியுமோ பார்க்குறேன் वेदस्य कर्ता न स्मर्यते परन्तु अनेके ऋषयः तत्र एकैकस्य मन्त्रस्य सम्बन्धिनः तत्तन्मन्त्रसम्बन्धिनः ऋषयः ऋषिच्छन्दो दैवतानि उच्यन्ते खलु ऋषिः कः ऋषिः किम् एतत् अयं ऋषिः अयम् एतत् छन्दः उच्यते तर्हि सः ऋषिरेव तस्य कर्ता इति आयाति यः ऋषिः ते तत्तन्मन्त्रेण सह अस्माभिः उच्यते स एव ऋषिः तस्य कर्ता சொல்லக்கூடாதா கேட்டால் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா सः कर्ता इति तेन ये अनादिपरम्परायाम् अस्माभिः न स्वीक्रियते द्रष्टा इति स्वीक्रियते
मन्त्रद्रष्टा इत्यस्य कोऽर्थः इदानीम् ईश्वरः मन्त्रद्रष्टा एव खलु पूर्वं विद्यमानम् अयं तथैव स्वीकरोति इत्युक्ते அந்த மந்திரத்தை தெரிஞ்சவன் அவ்வளோதான் அர்த்தம் அந்த மந்திரத்தை தெரிஞ்சவன் तर्हि वयमपि द्रष्टारः वयं मन्त्रं पश्यामः खलु इत्युक्ते तथा न कल्पारम्भे तं मन्त्रं प्रथमतः भगवन्मुखात् स्वीकृतवान् इत्यर्थे द्रष्टा इति उच्यते भगवान् कथम् ईश्वरः कथम् इत्युक्ते सः गतकल्पीयं स्मरति तस्य मुखात् ये श्रुतवन्तः ऋषयः ते द्रष्टारः इळुदां विषयं तेपि कर्तारः इति शिष्टैः उच्यते वा अयं विश्वामित्रः गायत्रीमन्त्रं विरचितवान् इति उच्यते वा नोच्यते कर्तारः इति नोच्यते द्रष्टृत्वेन स्मर्यन्ते ऋषयः न तु कर्तृत्वेन तर्हि कर्तृत्वेन कश्चित् स्मर्यते वा कर्तृत्वेन कोऽपि न स्मर्यते कर्तृत्वेन कोऽपि पुरुषः ईश्वरोऽपि न स्मर्यते कर्तृत्वेन न स्मर्यते तर्हि कर्ता न स्मर्यते इत्युक्ते कर्ता नास्ति एवं निर्णयितुं शक्यते वा कर्ता न स्मर्यते चेत् कर्ता नास्ति न बहूनां ग्रन्थानाम् इदानीं कर्तारः न स्मर्यन्ते अनेके ग्रन्थाः सन्ति अनेकानि सुभाषितपद्यानि सन्ति केन कृतम् इदं न ज्ञायते तर्हि तत्सर्वम् अपौरुषेयमिति भवति वा केळिवरणं प्रश्नः भवति खलु कर्ता न स्मर्यते इति एतावता अपौरुषेयमिति उच्यते चेत् ग्रन्थे किं पृच्छति ग्रामे कश्चन जीर्णः कूपः अस्ति अयं कूपः केन निर्मितः इति केनापि न स्मर्यते तर्हि तत् केनापि न निर्मितः इति निर्णेतुं शक्यते वा अनादिकालात् वर्तते इति कश्चित् कर्ता नूनं स्यात् अस्माभिर्न स्मर्यते इत्येव खलु वक्तव्यं सुभाषितानाम् उदाहरणं मया उक्तं बहूनि सुभाषितपद्यानि गीयन्ते खलु सुभाषितपद्यानि बोर्ड् मध्ये विलिख्य स्थाप्यन्ते भवद्भिः केन कृतम् इति नास्ति केन कृतम् इति न ज्ञायते एवं श्रूयते तावदेव बहूनि पद्यानि केन कृतानि इति न ज्ञायन्ते अस्माकं प्रसिद्धानि पद्यानि अपि बहूनि वर्तन्ते तेषाम् अपौरुषेयत्वं केनापि उच्यते वा नोच्यते तर्हि कर्ता न स्मर्यते इत्येतावता अपौरुषेयमिति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः तत्र उच्यते किम् अवश्यस्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणं तदभावस्य निर्णायकं किमुक्तम् अवश्यं स्मर्तव्यं परन्तु न स्मर्यते एतदेव अस्माकं नास्ति इत्यत्र सर्वत्र प्रमाणम् एतदर्थं समीचीनम् उदाहरणं वदामि अनुपलब्धिप्रमाणम् इत्युच्यते कर्ता नोपलभ्यते यदि स्यात् तर्हि उपलभ्येत वेदसम्बन्धी अन्यत् सर्वं स्मरन्तोपि ऋषयः कर्तारं केवलं न स्मरन्ति तर्हि सः नास्ति इत्यर्थः இது எப்படின்னா ரொம்ப சரளமான உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த வர்ற வழியில் யானையை பார்த்ததா இப்போ இன்றைக்கி சத்தியமாக சொல்லுங்க வர்ற வழியில் मार्गे कश्चित् गजः त्वया दृष्टो वा न दृष्टः इदानीम् अहं पृष्टवान् नास्ति इति धैर्येण उच्यते खलु सन्देहोपि नास्ति स्वल्पोपि सन्देहः नास्ति एतु யோசிச்சுன்னு நீங்க சொல்றீங்க இப்போ मया न दृष्टः इति निश्चयः गजाभावं स्मृत्वा इति वक्तुं न शक्यते गजाभावं स्मृत्वा वदामि इति वक्तुं न शक्यते कुतः गजो नास्ति इति एकं ज्ञानम् उत्पन्नं वा आगमनकाले उण्मया सुलभ वर्णसमयத்தில் अत्र गजो नास्ति इत्येकं ज्ञानम् उत्पन्नम् आसीत् वा गजाभाव अनुभवः आसीत् चेत् तदनन्तरम् इदानीं स्मर्तुं शक्यते अतः अहं गजाभावं स्मरामि इति वक्तुं न शक्यते गजाभावത്തെ അനുഭവിച്ചിയ വരവഴിയില്ല സമയത്തിൽ പ്രസക്തിരേവ നാസ്തി किमर्थं इदानीं तर्हि न अनुभूतं प्रसक्तिरेव नास्ति तर्हि गजो नास्ति इति कथं त्वया उच्यते धैर्येण इत्युक्ते एवं वक्तव्यं मार्गे आगच्छता मया मार्गे वा मार्गे पार्श्वे विद्यमानं वा सर्वं दृष्टवता मया गजो न दृष्टः
यदि तत्र गजोपि स्यात् तर्हि न दृष्टः इति कथमपि न भवति சத்தியம் அதைவ கஜः உதாஹ்ரியते அது வழியில் இருந்ததுன்னா பார்க்காம வர முடியாது இல்லையா यदि तत्र मार्गे कश्चित् गजः यद्यभविष्यत् अवश्यं दृष्टवान् स्याम् ஏன்னா கண்ணு மூடிட்டு வரல கண்ணு திறந்து தானே வந்தது तर्हि यदि तत्र कश्चित् गजः अभविष्यत् मार्गे अन्यत् सर्वं दृष्टवता मया सः गजः अवश्यं दृष्टः स्यात् परन्तु नैव दृष्टः तस्मात् नास्ति इति उच्यते इदमेव खलु तत्र एवमेव मनसि विचिन्त्य अस्माभिः उत्तरम् उच्यते तदेव अत्र आनीयताम् वेदस्य सामान्यसुभाषितपद्यस्य च को भेदः इत्युक्ते ஏதோ ஒரு சுபாஷித பத்தியம் யாரோ எங்கேயோ வச்சு இருக்குது அது சொல்கிற மாதிரியா வேதத்தை கவனிக்கிறது தத்திர பதம் ஞாயத்தே வர்ணः ஞாயத்தே ஸ்வராः ஞாயந்தே அது சம்பந்தியான ஏகப்பட்ட விற்த்தாந்தங்கள் தெரியும் சமாச்சாரங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான் பெரிய பெரிய சலக்ஷண கனபாடிகளெல்லாம் கேட்டால் அது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு ஒவ்வொரு இதெல்லாம் லக்ஷணங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கிறவா கர்த்தாரம் கேவலம் ந ஸ்மரந்தி அது இதெல்லாம் மறந்தால் கூட அதுதானே இருக்குது அந்த ஒரு கர்த்தா ஆசாமி இருக்குன்னா அவரை தானே முதல் ஆதரிக்கணும் ஒரு கிரந்தம் படிக்கும்பொழுது கர்த்தாவை முதல் அவரை ஆதரிச்சுட்டு தானே போனோம் இல்லையா அந்த ஒரு கர்த்தான ஒரு ஆசாமி இருக்கிறதா இருந்தால் அவரே மட்டும் மறந்துண்ட பாக்கி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அது பழக்கம் இருக்கா எங்கேயாவது அது ஒரு நார்மல் ப்ராசஸ் இல்லையே ஆமாம் அதுதான் முக்கியம் ஒரு கர்த்தா இருந்தால் அந்த வாக்கியத்தை ஏதாவது ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம பிரமாணமாக ஒத்துக்கிறதா இருந்தால் அது பிரமாணம் எப்படி புத்தி வரும் அவர் சொன்னது இல்லையா அது சொல்கிறவனே மேல் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அவர் சும்மா சொல்ல மாட்டார் தெரிஞ்சுட்டு சொல்கிறவா அதனால் அவர் சொல்கிறதுனால அது தப்பாக வராது இது மனசில் வச்சுட்டு தானே அந்த பிரமாணத்தை பிரமாணமாக ஒத்துக்கிறது பரந்து வேத விஷய ஸ்திதி கதமஸ்தி வேதः பிரமாணत्वेन सर्वैः शिष्टैः महता आदरेण स्वीक्रियते परन्तु तस्य कर्तारं न मन्यते இது எப்படி வந்ததுன்னா ஒரே வழிதான் இருக்குது கர்த்தா இருக்கக்கூடாது இருந்தால் ரெண்டு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி இருக்குது சஹ கதம் இதம் சர்வம் அவகதவான் வேதேன यद्यद् उच्यते तत् सर्वं तेन कथम् अवगतम् इत्यपि अन्यः प्रश्नः भवति அது இன்னொரு கவலை சொர்க்க காமோ எஜேதான்னு இருக்குது யாகத்தினால சொர்க்கம் வரும் இது எப்படி தெரிஞ்சது கதம் தேன அவகதம் பிரத்யக்ஷேன அவகதம் வா அனுமானேன அவகதம் வா तर्हि मानान्तरेण अवगताः अवगन्तुम् अशक्याः अनेके विषयाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते तत्सर्वं बाधितम् इति वक्तुं न शक्यते बाधो नास्ति तथा न भवति इति तव निश्चयः अस्ति वा यागेन स्वर्गो न भवति इति कोऽपि निश्चयः अस्ति वा नास्ति खलु तर्हि बाधो नास्ति बाधोपि नास्ति इति स्थिते तत्र सत्यं तद्विषये नास्ति इति वक्तुं न शक्यते இந்த வரைக்கும் கண்ணுக்கு தெரியல அவ்வளோதான் கண்ணுக்கு தெரியலன்னா நாஸ்தின்னு அர்த்தமா அப்படி இல்லை தெரியல அவ்வளோதான் தர்ஹி வேதேன यत्किञ्चित् बोध्यते परमात्मस्वरूपं बोध्यते अनेके धर्माः बोध्यन्ते अदृष्टविषयाः बोध्यन्ते இதெல்லாம் இன்னொரு பிரமாணத்துக்கு விஷயம் இல்லை तर्हि कश्चित् यदि कुर्यात् तर्हि तेन कथं कृतम् इति प्रश्नः केन प्रमाणेन अवगत्य कृतम् अस्य उत्तरं वक्तुं न शक्यते अस्तु कर्तृत्वेन एते स्मर्यन्ते वा कर्तृत्वेन न स्मर्यन्ते केनापि एते पुरुषाः वेदसम्बन्धिनः ऋषयः स्मर्यन्ते ते कर्तृत्वेन न स्मर्यन्ते अदोन्न एवञ्च अनेके अंशाः तत्र एते कर्तारः इति वक्तुं प्रतिबन्धकाः वर्तन्ते अस्माकम् अतः वेदस्य कश्चित् कर्ता वर्तते एकः कर्ता वा कश्चित् एकः कर्ता वा अनेके कर्तारः वा बहवः क्लेशाः कर्ता यदि कल्प्यते कल्पयितुमेव न शक्यते इति बहु वक्तव्यं मया अत्र संक्षिप्यते बहु वक्तव्यं तस्मात् यदि कश्चित् कर्ता स्यात् तर्हि तं कर्तारम् अनादाय अस्माभिः प्रामाण्यं निरूपयितुं न शक्यते परन्तु प्रामाण्यं तु प्रमाणत्वेन सर्वे शिष्टाः अनादिपरम्परया वेदम् अङ्गीकुर्वन्ति परन्तु कर्तारं तु न जानन्ति इत्यस्याम् अवस्थायां कर्ता नास्ति इति सिद्ध्यति जीर्णकूपस्य दृष्टान्तः कश्चन उक्तः सः दृष्टान्तः न युक्तः कुतः इत्युक्ते जीर्णः कूपः अस्ति
स तु केन कृतः इति न ज्ञायते। तर्हि कश्चित् कर्ता नास्ति इति सिद्ध्यति वा इत्युक्ते न सिद्ध्यति। कुतः इत्युक्ते एकं तु सः जीर्णः, அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நமக்கு. அந்த வைலட்சணம் இருக்குது. இந்த வேதத்தை பற்றி எல்லாமே தெரியும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதெல்லாம் தெரியும். வேதத்தினுடைய அர்த்தம் தெரியும், பதபேதம் தெரியும், ஸ்வரம் தெரியும், எல்லாம் தெரியும். எல்லாம் ரட்சிதமாக இருக்குது. கர்த்தா மட்டும் தெரியாது. ஜீரண கூபம் அப்படி இல்லை. அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. கூபம்னு தான் தெரிய வரும்னு தெரியாது. சில இந்த ஜீரண கூபத்தை விட்டுக்கோங்க. ஒரு அத்தியந்தம் आदरणीयः कूपः स्वीक्रियताम्. अत्यन्तम् उपयुज्यमानः सर्वैः आदरेण गृह्यमाणः कूपः स्वीक्रियताम्. तस्यापि कर्ता न ज्ञायते इति भवति खलु. कर्तारं विस्मृत्य कथं वर्तन्ते तावता कर्ता नास्ति इति सिद्ध्यति वा इत्युक्ते न सिद्ध्यति. अदा अங்கே இருக்கிற வைலட்சண்யம் என்னன்னா, இந்த கூபம் என்ற பதார்த்தத்தை நம்ம எதுக்காக உபயோகப்படுத்துறது லோகத்தில்? ஜலபானாर्थं खलु. जलग्रहणार्थं कूपस्य उपयोगः कर्तव्यश्चेत् तस्य कर्ता अवश्यं ज्ञातव्यः इति अस्ति वा? न. तस्य कर्ता यदि न ज्ञायेत तर्हि ततः जलपानं कर्तुं न शक्यते इत्यस्ति वा? न शक्यते. तथा नास्ति. तर्हि कर्ता विस्मृतः इति सम्भाव्यते. परन्तु वेदः इति पदार्थः वाक्यरूपः. सः किमर्थम् अस्माभिः उपयुज्यते इत्युक्ते केन रूपेण उपयुज्यते? प्रमाणत्वेन उपयुज्यते. प्रमाणत्वेन उपयोक्तव्यं. यदि किञ्चित् वाक्यं प्रमाणत्वेन अस्माभिः उपयोक्तव्यं तर्हि तस्य यदि कश्चित् कर्ता स्यात् सः स्मर्तव्यः. पुरियर्दिल्लया? यदि कश्चित् कर्ता स्यात् तं विस्मृत्य वाक्यं प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते इति नास्ति. ஏன்னா கர்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் அந்த கர்த்தா எந்த பிரமாணத்தினால இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்ச அப்புறம் தான் வாக்கியம் பிரமாணம். தேன तदुक्तं वाक्यं प्रमाणम् इति तदा एव ग्रहीतुं शक्यते. पौरुषेषु वाक्येषु सर्वत्र इयं स्थितिः. इति स्थिते वेदस्य प्रमाणत्वेन शिष्टैः अङ्गीकारः क्रियते, परन्तु कर्ता न स्मर्यते इति इमां दशाम् उपपादयितुम् एक एव मार्गः. कः मार्गः इत्युक्ते केनापि न रचितः इति कल्पनीयं. कल्पना लाघवञ्च भवति. एवञ्च अनादिपरम्परया अध्ययन अध्यापनक्रमेण आगतानि इमानि वाक्यानि इत्येव कल्पनीयम् इति अन्ततो गत्वा सारांशः अपौरुषेयतावादस्य. अवान्तरविषयास्तु अनन्तरं बहु चर्चनीयाः तत्र वर्तन्ते, चिन्तनीयाः वर्तन्ते. एवञ्च एतावत् ज्ञायते चेत् पर्याप्तं. तत्कालं पर्याप्तम्. अनेन वेदस्य अपौरुषेयत्वं सिद्ध्यति. तथा च अपौरुषेयत्वे किं प्रमाणम् इति पृष्टे इदमेव वक्तव्यम्. ईश्वरेण कल्पादौ उच्चरितम् इत्येतत् अपौरुषेयत्वस्य विरोधी अपि नास्ति. तदपि व्याख्यातं. तथा च वेदस्य प्रामाण्यम् एवं रीत्या उपपाद्य तादृशेन वेदेन प्रतिपादितत्वात् परमेश्वरस्य प्रामाण्यं. परमेश्वरस्य प्रामाण्यं नाम परमेश्वरस्य प्रमातृत्वं, परमेश्वरस्य आप्तत्वं साधयितुं शक्यते. कुतः आप्तत्वेन वेदेन सः कीर्त्यते. तावता पर्याप्तं. वेदप्रमाणम् इति प्रकारान्तरेण साधितम् इति कृत्वा निरस्तसमस्तदोषकलङ्कस्य निरुपप्लव निरतिशय ज्ञानप्रत्यक्ष ज्ञान अल्ल अंग इदु निरुपप्लव निरतिशय ज्ञान प्रत्यक्षानुभूयमान त्रैकालिक वस्तुविलासस्य निरुपप्लव निरतिशय ज्ञान रूपं यत् प्रत्यक्षं निरुपप्लवं भ्रमरहितं निरतिशयं निरतिशयम् इत्युक्ते अतिशयशून्यम्. इतोपि नाम सर्ववस्तुविषयकत्वात् निरतिशयं ज्ञानं परमेश्वरस्य. निरतिशयज्ञानेन प्रत्यक्षतः अनुभूयमान त्रैकालिकवस्तुविलासस्य त्रैकालिकवस्तुविलासः तेन प्रत्यक्षतः अनुभूयमानः वर्तते. तथाविधस्य स्वतःप्रमाणस्य अन्यनिरपेक्षं प्रामाण्यं परमेश्वरस्य. तथाविधस्य परमेश्वरस्य परमाप्तस्य अवाप्तसमस्तकामस्य शिवस्य ब्रह्मणः वचनं तु प्रमाणमेव भवति इत्युक्तम्. अत्र स्थापयामि.
मोक्षाय लोकानां कृष्णेते चिदानन्दरूपाय शिवाय